क्या आपने कभी सोचा है कि ये मून कभी कभी क्यों चमकता है, कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है? इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। और कभी ये सोचा कि जो एम्बुलेंस होती है ये उल्टे तरीके से क्यों लिखा होता है? भाई सीधे लिख देते तो आदमी पढ़ लेता आसानी से। द आंसर लाइज इन समथिंग truly magical, the way light behaves. And today we are going to explore the world of reflection of light. Trust me, after this video, you will never look at a mirror the same way again. So hello everyone, welcome back to the channel. I am Kushagra Pandey and today we are diving into a very interesting chapter of physics, that is light reflection. Let's begin. So light is not just something that helps us see. It's actually a form of energy that helps us see. It's actually a form of energy, a transverse and electromagnetic wave which has a transverse nature. So do you know that light does not need any medium to travel? Why? Because light is a electromagnetic waves, okay, which has a wavelength of 400 nanometer to 700 nanometer, which travels in air or vacuum. Because I have told you light does not need any medium to travel. So the speed of light in air or vacuum is 299,792,458 meter per second. You can also write it as 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and the symbol used is C. If you have seen anywhere that C is written, that means it is the speed of light in air or vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So when there is concept of speed of light, that means speed of light changes with the change in medium. That means if you change the medium, then speed of light also get changes. Okay, so these are the point. So now the question arises, can light really bend? Okay, so light travel in straight line. This is called rectilinear propagation of light. As you can see in this figure, when this person is looking at the candle, it is going straight from the hole. If any hole is present here but not here, then this person will not be able to see the light that is coming from the candle. So this is the spectrum which is coming from the sun. It has all the waves: radio waves, microwaves, infrared waves, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. So these are rays, that means they have some frequency and they have some wavelength. Here the frequency is inversely proportional to the wavelength, which is denoted by lambda. So when the frequency is low, wavelength will be long, and when the frequency is high, wavelength will be short. Okay, so you can note the important things from this slide, and we are going ahead to the next slide. So now the question arises, what are the sources of light? Can you name some? Think for a second. Yes, in the room you are sitting, you can also see the sources of light. Okay, so what are the sources of light? Now you can see here sun, volcano, stars, candle, torch, electricity or thunder. So these are the sources of light. Why they are sources of light? Because these are some physical object or the devices that emits visible light. ऐसी लाइट जिनको हम देख सकते हैं और अपने आस पास के सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, एल्यूमिनेट करते हैं, रोशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? रोशन करते हैं, चमका देते हैं। ठीक है ना, आसान भाषा में भी समझ लो आप इसको। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। जिनसे हमें लाइट मिलती है, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है? उनकी कैटेगरी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स
which emit light on their own. Attention on this point, that luminous objects are those objects which emit light on their own. Okay, and now the non-luminous objects. Non-luminous objects are those objects that doesn't have their own light and reflect the light incident on it. Remember this point, they reflect the light incident on it. ओके चलिए, तो जो हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि भाई ये जो मून है ये आखिर चमकता कैसे है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो सन होता है ना, सन की लाइट मून पे पड़ती है, और हम जो अर्थ पे बैठे होते हैं, इसी वाली चेयर पे जो बैठे होते हैं, तो ये लाइट हमको ऐसे दिखाई देती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। तो सर फिर हमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई क्यों देती हैं, वो दिखाई देती हैं हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, तो भाई आखिर ये रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब जब लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो, बट कब, जब वो स्ट्राइक करे किसी सरफेस को, तब। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई सरफेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, तो जब लाइट रे इंसिडेंट होती है सरफेस पे और बाउंस बैक करती है इन द सेम मीडियम, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कि कितना हमें साफ दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस कितनी स्मूथ है, कितनी शाइनिंग है और कितनी पॉलिश्ड है। जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगी उतनी ज़्यादा लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे आप ये वाटर का एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ पे पानी जो है वो रुका हुआ है, एकदम प्लेन सरफेस बन रखी है, इस वजह से हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, और ये शीशे में भी आप देख सकते हैं खुद को, सॉरी चलिए ठीक है, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन समझते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है इसके क्या क्या लॉज है। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, अब जैसे ये हमने मान लिया कि एक सरफेस है, मिरर है हमारा, पॉलिश्ड है, स्मूथ है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कैसा भी है, अगर छोटा सा भी पार्टिकल है उस पर भी लाइट इंसिडेंट होकर के हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो इंसिडेंट रे है जब ये स्ट्राइक करी किसी सरफेस को, उसके बाद ही क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। हमने समझा अभी लास्ट स्लाइड में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसकी जो लॉ है वो क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्या होती है भाई, जो कि होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है ये, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ पे बनेगी ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनेगी। कौन, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये ड्रॉ करी जाती है, परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के। ठीक है, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। हमारा दूसरा लॉ है, पहला लॉ हमने देखा, अभी दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अब हम ये भी समझ लेते हैं साथ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है एंगल वो हमारा इंसिडेंस एंगल होता है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जो लॉज हैं ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इसके अच्छे से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम भी क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो क्वेश्चन क्या है कि जो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आखिर ये किसके किसके लिए सही है, क्या हर जगह के लिए सही है। मतलब अगर
प्लेन सरफेस हो या रफ सरफेस हो या अनपॉलिश्ड अनइवन सरफेस हो, तो क्या तीनों के लिए ये लॉज वैलिड हैं? तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड ऑन एनी ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। क्योंकि भाई लॉज हैं, उनके नाम में लिखा हुआ है लॉज, ये कोई हमने नहीं बनाया है, ये हमने बताए हैं बस, और बाकी ये सालों से जो लाइट का बिहेवियर हम देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई वहाँ से सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा आपका। क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये हमारा, इसमें दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे जो है ये मिरर के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, 45, ठीक है ना। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है ना। तो भैया ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर हमने सीधा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और 45 डिग्री का एंगल यहाँ से है, और ये पूरा एंगल कितने का होता है? ये पूरा एंगल होता है 90 का। तो माइनस कर देंगे 45, कितना बच गया भाई? 45 आ गया। अब ये 45 है, तो दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो और सोचो कि इसमें कौन सा लॉ लगाएं कि फटाक से आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है। अब अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बवाल है भाई, इसमें हो क्या रहा है आखिर? एक बार अच्छे से देखो इसको और फिर सोचो। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये तो हम नॉर्मल मान लेंगे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, और ये एरो दिखा रहा है कि भाई इसी पॉइंट पे ही रिफ्लेक्शन भी हो जा रहा है सेम लाइन में। इसका मतलब क्या है? तो भाई देखो, ये जो हमको नॉर्मल दिख रहा है कितना है भाई? 90 डिग्री है। अब नॉर्मल भी 90 डिग्री पे, इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री पे, और रिफ्लेक्टेड रे भी 90 डिग्री पे। जब तीनों चीज़ें 90 डिग्री पे हैं, इसका मतलब जो आई है, तो अगर एन 90 डिग्री है तो आई और एन के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? 0 डिग्री। और जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो भी कितना बना देगा एंगल? 0 डिग्री। तो ये इस तरीके से जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इसको जो टर्म दिया जाता है वो दिया जाता है कि ये एक तरीके का नॉर्मल इंसिडेंस है। क्लियर है भाई? समझ में आया? चलिए ये हो गए कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे अपने। तो अब जानते हैं हम कि ये जो रिफ्लेक्शन है, ये कितने टाइप के होते हैं आखिर, है ना। चलो इसको जल्दी समझ लेते हैं। तो पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इरेगुलर, जिसे हम डिफ्यूज्ड भी कहते हैं और इसे हम स्पेकुलर भी कहते हैं, रेगुलर को, ठीक है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होगा? वो हमेशा कहाँ पे होगा भाई? वो एक स्मूथ सरफेस पे होगा, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। देखो ये जो सरफेस है ये कैसी है भाई? ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। ये स्मूथ सरफेस है और इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही हैं ये तो पैरेलल गिरेंगी, ये चीज़ है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल जा रही हैं, ये कहाँ पर होता है? ऐसा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जब लाइट इंसिडेंट हो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल निकल जाए, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। और इसमें क्या होता है भाई? ये एक रफ सरफेस पे होती है। अब ये रफ सरफेस कुछ इस तरीके की है ना। तो ये जो रफ सरफेस है कुछ इस तरीके की है, इसे हमने जब जूम कर दिया तो हमें कुछ ऐसा कर्व स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है ना, दैट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आता है भाई, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो हमेशा किसी एक डायरेक्शन में जाती हैं, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। देख रहे हैं आप, इसमें कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। इनकी डायरेक्शन क्या सेम है? इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये मिरर क्या होता है आखिर, ठीक है। तो मिरर आर द ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट आर कोटेड विद सिल्वर, उसको सही से बोलें तो AgNO3 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का पेंटिंग करते हैं हम लोग
जो कि क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है हमारा प्लेन मिरर्स, ये बना हुआ है एकदम सीधा सीधा जो दिखता है आपको। उसके बाद आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें से दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, जो कॉनकेव है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है और जो कॉन्वेक्स है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अभी हम इन दोनों मिरर के बारे में भी आगे समझेंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। मिरर को दिखाने का एक ये कन्वेंशन है या तरीका आप मान सकते हैं कि पीछे पॉलिश हो रखी है। ठीक है ना, तो ये प्लेन मिरर है। हमने अभी पहले फ़ोटोज़ में भी देखा कि प्लेन मिरर हमारा कैसा दिखता है। अब प्लेन मिरर के सामने मैं एक पर्सन को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये बस सेम एग्जांपल है पीछे वाली की तरह। बंदा मुस्कुरा रहा है क्योंकि निगेटिविटी हमें अपने आसपास भी नहीं चाहिए। गांधी जी का फ़ैन है। और यहाँ पे एक बल्ब भी यूज़ कर लेते हैं भाई, क्योंकि अब रोशनी कहाँ से आएगी। पर्सन कैसा ऑब्जेक्ट है, पर्सन एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और बल्ब हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इस पर्सन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब जब भाई लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट क्या करती है, लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, चलो अच्छा, ये रिफ्लेक्शन हो गया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे बॉडी पे उसके लाइट गिरेगी और हम उसको बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मान लेते हैं d डिस्टेंस पे है, तो ये सेम डिस्टेंस पे क्या बनाएगा भाई, इमेज भी बनाएगा। तो ये यहाँ पे इसके पैर की इमेज ऐसे बन गई, सेम इसकी भी बनेगी तो इधर बन गई, पेट की भी, पेड़ ही बन गया। अब ये वाला हाथ किधर जाएगा, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, चलो इसको d डैश मान लेते हैं। तो अब यहाँ से d डैश डिस्टेंस पे ये इसके लेफ्ट वाले हैंड की इमेज बनाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका हाथ ऐसे। ठीक है, और दूसरा, अब ये छोटी डिस्टेंस है तो ये भी कम डिस्टेंस में बनेगा, तो ये बन गया भाई इसका, और बाकी फिर इसका हम सर बना देते हैं, आँख बना देते हैं। अब कहोगे सर इसकी आँख भी राइट लेफ्ट हो जाती है क्या, हाँ बिल्कुल। अब इधर वाली आँख की डिस्टेंस देखो और इधर वाली आँख की डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये क्या बिहाइंड द मिरर बन रही, किधर बन रही है भाई, दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड में जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं हमारी वर्चुअल इमेज। ओके, तो हमने देख लिया भाई कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बन रही है फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये कैसी है, सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पे है, लेटरली इन्वर्टेड है और वर्चुअल है। कैसी भाई, वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ साथ मैंने क्या कहा, वर्चुअल जब भी बनेगी इमेज उसके साथ हमेशा आएगा कौन, उसके साथ हमेशा आएगा इरेक्ट। क्या आएगा भाई, वर्चुअल के साथ हमेशा आएगा इरेक्ट। ओके, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स टू लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है लाइट का जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है। ठीक है ना, क्या होती है भाई, इंसिडेंट होती है कौन, लाइट। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है सिनेमा स्क्रीन पर। आपने देखा है क्वेश्चन स्लाइड में पीछे, अपने दिमाग से याद करके इसका आंसर करिएगा। ठीक है, और अब आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क ये है कि आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पता करके आओगे। और कलीडोस्कोप जानते हैं सब लोग, बिल्कुल जानते होते हैं। अब उसमें क्या होता है ये भी आपको जानना है। और ये प्लेन मिरर का एक एप्लीकेशन है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। और एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब बताया मैंने, कि जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं समझा दे रहा हूँ। तो अभी जो एम्बुलेंस है, जब कोई पर्सन जो कि व्हीकल से जा रहा है, ये है
बाइक बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये जा रहा है तो इसके जो हैंडल में मिरर लगा हुआ है उसमें ये एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। पूरा आप देख सकते हैं, फिर लास्ट में ई। तो क्यों दिखाई देगा भाई? क्योंकि वो इमेज को क्या कर देगा, लेटरली इन्वर्ट कर देगा, इस वजह से हमको ये एम्बुलेंस कैसा दिखने लगेगा, सीधा दिखने लगेगा। और भाई एम्बुलेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहीं पे भी अगर एम्बुलेंस को जाते हुए देखें तो उसके लिए रास्ता ज़रूर बनाएं, और अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, अगर जाम में फंसे हुए हैं तो हेल्प करिए और एम्बुलेंस को निकालने दीजिए। तो चलो, ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, और अब आप लोग को इन क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का ट्राई करो, और अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता तो मुझे बताओ, और अगर हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपसे क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर करो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर, रिमेंबर you are not just looking at yourself, you are looking at physics in action. Okay, so now don't forget to like, share and subscribe for more cool physics explanation in the simplest way possible. मैं आपके पास बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा. So now see you in the next video where we will dive into refraction. Until then, keep questioning, keep exploring. Okay, take care, bye bye.